each and every responsibility you have to pen down. उसको pen down करें, and please keep things in mind that if you are failing to plan, there is actually a planning to fail. अगर आप किसी भी चीज को प्लान करने के लिए फेल हो जाते हैं, इट्स एक्चुअली आपके प्लानिंग जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए. आप अपना हर दिन प्लान कीजिए. हर दिन प्लान करने के लिए यू हैव टू मेंटेन द प्रायोरिटीज. अपनी प्रायोरिटीज आपको सेट करनी होंगी. आपकी डेली प्रायोरिटीज क्या है, आपकी वीकली प्रायोरिटीज क्या है, आपकी मंथली प्रायोरिटीज क्या है, आपकी ईयरली प्रायोरिटीज क्या है. अब अपनी फैमिली के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज है, आप अपने आप को फोकस रखने की कोशिश कीजिए. मेक अ प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट. Just try to find out the small thing which you are supposed to finish within a day, maybe within a week. Just finish it first. जैसे जैसे चीजें खत्म होती जाएंगी आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, यू विल बी फीलिंग मोर रिलैक्सेशन. आपको अच्छा महसूस होगा. सो प्लान आउट योर ईच डे, बट prioritize your daily, weekly and monthly tasks. That is the technique number 3. Now move forward towards the technique number 4. We can plan, we can prioritize, but how we are supposed to maintain the टाइम मैनेजमेंट टूल्स. हम अपने पास कुछ टाइम मैनेजमेंट टूल्स यूज कर सकते हैं. बहुत सिंपल. जो टू डू लिस्ट आप बना रहे हैं, जो चीजें आप लिख रहे हैं, जो प्लान आप बना रहे हैं, जस्ट मेक इट. स्पीकिंग ऑफ टू डू लिस्ट, आपको ऐसा टाइमर या कोई ऐसा टूल यूज करें जो आपके लिए स्पीक अप करे, कोई अलार्म करे आपको. So make your life easier with a simple download of speaking apps. There are a number of apps available on internet through which you can make the to-do list in a speaking way. You have to add a single time management tool to your repertoire. आप एक single time management tool अपने जो भी आपका time manage आप करना चाह रहे हैं उसके according अगर आप add कर लेते हैं, so you will be feeling more relaxation. There are a lot of plans like toggle plans, stopwatch, alarms are the most common methods to put reminders and indications. What comes in your mind if you talk about multitasking? आपके ज़हन में multitasking से क्या आता है? So don't you think it's difficult? So for effective time management, point number 5 is that do not multitask. This is what my suggestion is, that do not multitask. It is actually lowering your comprehension level to 11%. If you are able to produce 100%, you will be actually producing 89%. आपका comprehension level, आपके समझने की, चीजों को डिलीवर करने की जो पावर है वो मल्टीटास्किंग में जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलते. बियॉन्ड योर इंटेलिजेंस लेवल, मल्टीटास्किंग आल्सो इनेबल परफॉर्मेंस विद अ 40% ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी. वंस यू आर हैविंग 11% लोअर कॉम्प्रिहेंशन लेवल, जब आप मल्टीटास्किंग की तरफ जाते हैं 11% आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल लो होता है, देन व्हाट, योर इंटेलिजेंस लेवल मल्टीटास्किंग में कंज्यूम होता है or you will be dropping 40% productivity in a low value. So what is the end result? आपने 2 काम एक साथ शुरू किए, आपने 3 काम एक साथ शुरू किए, तीनों 100% नहीं हो पाए. So what is the result? आपको एक्यूरेसी तो नहीं मिली. So why going for multitasking? I do not suggest multitasking. Multitasking is not at all recommended at this time because it is lowering your comprehension level and 40% drop in productivity. Just keeping in mind, multitasking doesn't mean that you are writing a survey, writing a report and watching a TV. It is not multitasking. These are the elements. If you are watching TV, you are listening music, you are eating while working, it is not multitasking. These all are the productivity benefit elements. ये सब तो elements हैं. क्या आप काम करते हुए म्यूजिक सुन रहे हैं, ये मल्टीटास्किंग नहीं है. काम करते हुए you are eating something, it's not multitasking. ये elements हैं. Or you are working on a project of somewhere in the mountain area and you are also working on a project somewhere in the construction site. तो वो ये 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपके लिए मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा. So my suggestion is that do not go for multitasking. Point number 6 is that try to determine your productive time. What is your productive time, by the way? Are you a morning person? Are you a night owl? Or you are good at afternoon times? Step number 6, you have to find out your productive time, the time in which you can produce best results. If you are a morning person, like आपको पता होगा क्या ये आपका best productive time है. If you are a morning person, you can perform better in morning. और अगर आप midnight पे अच्छा काम perform करते हैं, you are a night owl, तो वो आपका best productive time होगा. आप उस सबको ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे. और somewhere आप कहीं ना कहीं afternoon में भी कुछ लोग काम कर लेते हैं. So what is the difference? क्या difference क्या है इसमें? Morning, if you are a morning person, you must be wide-eyed. You get up after having a deep sleep. You must have gone through a relaxing, quiet environment. सुबह को जो खूबसूरत माहौल होता है, सूरज निकल रहा होता है, sun rising. So as working abilities, जैसे जैसे सूरज निकल रहा होता है, आपकी working abilities भी बढ़ती हैं. So just try to find out your productive time. If you are a morning person, that's extremely well. Productive time भी हमें मिल गया, हमने stress भी remove कर लिया, हमने
अपने मल्टीटास्किंग भी खत्म कर दी। नाउ दिस इज टाइम टू रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस। अपने पास से डिस्ट्रैक्शंस खत्म कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस, व्हिच सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस? टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन डिस्ट्रैक्ट अस। क्या है वो डिस्ट्रैक्शंस? वो डिस्ट्रैक्शंस है हमारे फोन्स, social media, our internet, emails, our co-workers maybe, and yes, meetings. Of course, if it's a planned, it's a useful meeting, it's important to have in a productive way, then fine. If it is distractions khatam kar diye. If you are working in a project, then definitely there is no use of smartphone over there, there is no use of social media over there, there is no use of internet over there. अगर आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जस्ट पुट योर मोबाइल फोन इन कबर्ड, जस्ट डोंट ट्राई टू गो फॉर चेकिंग ईमेल्स। जैसे अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, जैनब ने किया था कि बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ तो लेके जाते हैं लेकिन बच्चे फोकस नहीं कर पाते। इसको इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर कि इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और मे बी इन सम वर्क, तो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस क्या कर रही हैं? डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम काम करने बैठते हैं लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे, किसी प्रोजेक्ट पे, और हम ईमेल चेक करना शुरू कर देते हैं, और वी ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया एक्सेस करने लगते हैं, हम फ्रेंड्स से बात करने लगते हैं। तो वी आर सपोज्ड टू जनरेट द फोकस। इफ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आई हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट ओनली। सो इफ आई एम हैविंग अ प्लान टू वर्क फॉर 1 hour ऑन द प्रोजेक्ट, इन डिस्ट्रैक्शंस के साथ दैट प्रोजेक्ट विल गो फॉर 4 hours। मेरा वो टाइम बढ़ जाएगा। तो जहां मैंने अपना टाइम सेव करना है, उस टाइम को मैंने कम करके यूटिलाइज करना है, वहां इन डिस्ट्रैक्शंस के साथ मेरा टाइम 4 to 5 times ज्यादा हो जाएगा। टिल नाउ वी हैव गॉन थ्रू द 7 टेक्निक्स। सो व्हाट अदर डिस्ट्रैक्शंस कैन बी? इसके अलावा और कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं? मुझे ये मालूम है, आई नो दैट इफ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, इफ आई एम वर्किंग ऑन अ टास्क, दीज थिंग्स कैन कम अप। कोवर्कर्स भी आएंगे, कोऑर्डिनेटर भी आएगी, घर में गेस्ट भी आ सकते हैं, बच्चे डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको नींद आ सकती है, आप बीमार हैं। ये सब चीजें तो मुझे मालूम है, इसमें अननोन तो कुछ नहीं है। नथिंग इज अननोन, थिंग्स आर इन माई माइंड। सो अगर आप टेक्निक नंबर 1 से स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, ये सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। लोड शेडिंग इज नॉट द डिस्ट्रैक्शन, लोड शेडिंग इज द प्रॉब्लम। लोड शेडिंग प्रॉब्लम है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अच्छा, अगर आप पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमने ये चीज डिस्कस की थी, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि नो वन इज परफेक्ट, प्लान कैन बी फेल्ड। तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए। लोड शेडिंग हो रही है तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो प्लान, गेस्ट आ गए हैं तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए। या अगर बच्चे आपको तंग कर रहे हैं तो आप अपना प्रोडक्टिव टाइम फाइंड आउट करें। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें मिलकर कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देती है। यहाँ पर मेरे पास पॉइंट नंबर 6 इंप्लीमेंट होगा, दैट इज फाइंड आउट योर प्रोडक्टिव टाइम। मेरा प्रोडक्टिव टाइम, सपोज अगर मैं अपनी बात करती हूँ, माई प्रोडक्टिव टाइम इज मॉर्निंग। किसी गेस्ट के आने का चांसेस नहीं होता, बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते, कोऑर्डिनेटर बॉदर नहीं करेगी, कोवर्कर्स के कॉल्स नहीं आएंगे, इंटरनेट ईमेल सब खामोश होगा। सो फाइंड आउट योर प्रोडक्टिव टाइम, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इफ इन केस ऑफ लोड शेडिंग, इफ इन केस ऑफ माइंडसेट आपका थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, ट्रबल में है, आपके टेक्निकल इश्यूज है, तो प्लान बी पे चलिए। प्लान बी क्या होगा? इन केस अगर लाइट चली जाती है, आई विल बी वर्किंग इन नाइट टाइम। अपना कोई दूसरा प्रोडक्टिव टाइम ढूंढ लीजिए कि मैं उस वक्त ये काम करूंगी। बट समटाइम्स ऐसा होता है, 5% फिर भी चांस होता है कि चीजें रह जाती हैं। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में करती हूँ। तो जो 5% चीजें रह जाती हैं, किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने के बाद भी, प्रोडक्टिव टाइम को रिमूव करने के, सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ जो रह जाता है, वो जो 5% प्रॉब्लम रह जाते हैं, उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को संभाल के रख रही हूँ लास्ट के लिए। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में। जस्ट ट्राई टू स्प्लिट अ लार्ज प्रोजेक्ट इनटू पीसेस। एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। लाइक इफ इट्स अ स्क्रीन वर्क, तो आप किसी आईटी रेलेवेंट टाइम पे आप कर लीजिए, जिस वक्त आपका सारे आईटी और टेक्निकल इश्यूज के साथ चीजें आपके पास अवेलेबल हों, आप कंप्यूटर पर सब काम कर सकते हैं। पेपर वर्क, व्हेन यू डू नॉट हैव अ डिफिकल्टी ऑफ लोड शेडिंग, आपके गेस्ट ना आए हुए हों, तो आप पेपर वर्क अपना उस टाइम के लिए उठा कर। प्रिंटिंग वर्क, व्हेन द प्रिंटर इज अवेलेबल, तो आप उस वक्त अपना प्रिंटिंग वर्क कर लीजिए। स्टैटिस्टिकल डेटा, जिस वक्त आपने फाइंड आउट करना है, उसका टाइम एक अलग से डिस्ट्रीब्यूट और फिक्स कर लीजिए। इन सारे कामों को जब आप सेपरेट कर लेते हैं और एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि 15 मिनट्स फॉर दिस, 15 मिनट्स फॉर दिस एंड 30 मिनट्स फॉर दिस, तो ऑटोमेटिकली चीजें रैप अप होना शुरू हो जाती हैं। जब चीजें रैप अप होती हैं और एक डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती हैं, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट एक बेस्ट प्रोडक्शन की तरफ जाता है।
ऊपर से चीजों को मत देखें कि आप बिल्कुल लेमैन की तरह ऊपर से चीजों को देखने का ऐसे भी कर लें, ऐसे भी कर लें, ऐसे भी कर लें। नो, प्रैक्टिकली स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, नीचे से चीजों को स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करना शुरू करेंगे, चीजों को बिट्स एंड पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग better results inshallah. So try to say no more often. Did you ever say no to anybody? If you say no to somebody, किसी के ना किसी काम बोले, तो आपके पास उसका रीजन भी होगा. You must have the reason. But talk about that personality. कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि yes man हैं. एक बैंकर की बात करते हैं, मैं एक्चुअली एक मूवी की बात कर रही हूँ. एक बैंकर की बात करते हैं जो कि एक बैंकर है और वो हर टास्किंग के लिए अपने बॉस को यस कहता है. एंड बाय एट द एंड ऑफ द मूवी, जब उसका एक जर्नी खत्म हुआ 2 years का, उसमें ये दिखाया गया कि हर चीज के लिए यस कहते 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 आखिर में उसके लिए अपने पास वक्त नहीं बचा, ना वक्त बचा, ना ही वो स्ट्रेस फ्री रहा. जब आप हर चीज को यस कहते चले जाएंगे, हर चीज को यस कहते चले जाएंगे, तो डेफिनेटली थिंग्स गोज ऑन योर नर्व्स. चीजें आपके नर्व्स पे आ जाएंगी कि अब आप यस कह चुके हैं, आपको करना पड़ेगा. डेफिनेटली. और हर काम आपके करने का नहीं होता. जो आपकी वर्किंग एबिलिटीज हैं, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जस्ट स्टे विद इन दैट. आप उसके अंदर रहिए. अदर देन योर जॉब डिस्क्रिप्शन, अदर देन योर वर्किंग लिमिट, डोंट गो फॉर एवरीथिंग. हर चीज के लिए मत चाहिए. यहाँ पे ये कहा जा रहा है अवॉइड बिकमिंग यस मैन और यस वुमेन. ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि आप अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, बट समटाइम्स हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, हम ये दूसरों को बता देना चाहते हैं कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं. उसके लिए आप हर चीज को यस कहते, यू डू नॉट हैव करेज टू से नो. अब जब आप हर चीज को यस कहते हैं तो चीजें आपके ऊपर पाइल अप होना शुरू हो जाती हैं. वंस थिंग्स गोस पाइल अप ऑन यू, वो स्ट्रेस जनरेट करती है. आप अपना काम कर नहीं पाते, दूसरों का काम मैनेज नहीं कर पाते, और डेफिनेटली फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज. जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, आप रियलाइज कर लेंगे कि ये चीजें जो विलिंगली तो आपने नहीं ली थी, सिर्फ ये सोच करके यू फील बेटर या ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छा फील करेगी या अच्छा कहेगी, आप ये करके काम तो ले लेते हैं, लेकिन चीजें आपके लिए बर्डन बनना शुरू हो जाती हैं. सो स्टार्ट सेइंग नो. आप नो कहना शुरू करें. नॉट फॉर एवरीथिंग बट फॉर समथिंग. कुछ चीजों के लिए नो कहना शुरू करें. जस्ट ट्राई टू रिमूव थिंग्स फ्रॉम योर शोल्डर. Things which are in your job description and are around your according to your responsibilities, just go for them. Other than that, you can just show another way to the one who is assigning you a task. No कहने का भी तरीका है ना. अब स्ट्रेट तो नो नहीं कह सकते, वो तो मिसबिहेव हो जाएगा बॉसेस के सामने. तो सिंपल सी एक बात है कि कुछ ऐसी वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज अपने लिए ओपन कीजिए जहां आप सामने वाले को पोलाइटली, स्वीटली रिफ्यूज कर सकें. जैसे कि अगर मुझे को काम कहा जाएगा which do not goes according to my job description, then definitely I will be guiding you to the person. जो शख्स मुझे काम दे रहा है, I'll be guiding you to that person कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम उनका है, आप प्लीज ये काम उनके पास ले जाइए. If somebody is asking me to do the physics lesson planning and I am a teacher of English, then definitely I will say no. Of course no. Why? Because this is not my work. इस तरीके से आप चीजों को अपने ऊपर से रिमूव कर सकते हैं. उस अननेसेसरी वर्कलोड को अपने ऊपर से रिमूव कर सकते हैं जो एक्चुअली रीजन बन रहा है स्ट्रेस जनरेशन का. स्ट्रेस जनरेट करता है आपके अंदर जब आप हर चीज को यस करते रहते हैं, चीजें पाइल अप होती रहती हैं और आप अपने अंदर से वो करेज नहीं ला पाते जहां पर आपने नो करना होता. सो अपने अंदर वो करेज पैदा कीजिए जहां पर आप नो कह सकें. आपके लिए पॉसिबिलिटीज का एक दुनिया खुल जाएगी, एक वर्ल्ड आपके लिए ओपन हो जाएगा जहां आप अपने वक्त को, अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे. और ये आपको इम्प्रूव करेगा जहां आप अपने आप को वैल्यू देंगे कि आप जो काम कर रहे हैं दैट इज मोर वैल्यूएबल. अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने टाइम को वैल्यू दीजिए, अपने काम को वैल्यू दीजिए. अगर आप अपने टाइम को, अपने काम को वैल्यू देंगे तभी दूसरे लोग उसको वैल्यू दे सकते. एंड दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम and you can manage other people's also. आप अपना टाइम भी मैनेज कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी अपने साथ मैनेज कर रहे हैं. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जो हमने शुरू में प्लान करने की बात की थी कि अपना डे टू डे टास्किंग प्लान करें, उसको प्रायोरिटाइज करें. अभी कुछ देर पहले मैंने पॉइंट नंबर 8 में एक चीज डिस्कस की जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अपने लार्ज प्रोजेक्ट को स्प्लिट करें छोटे छोटे टेंशन बिट्स में, छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करें. पॉइंट नंबर 10 इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ पॉइंट नंबर 8. उसी से लिंक करता है. डेलीगेट वर्क व्हेन यू कैन.
जब आप अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मैंने आपसे ये कहा कि स्क्रीन वर्क अलग कर लें, पेपर वर्क अलग कर लें, प्रिंटिंग वर्क अलग कर लें, सेपरेट कर लें। इसी तरह से अपना ग्राफिकल या जो भी डिजाइनिंग का काम है, कंप्यूटर एप्स का काम है, उन सबको सेपरेट कर लें। डेफिनेटली यू नीड द वर्क फोर्स फॉर दैट टू। आपको उसके लिए वर्क फोर्स भी चाहिए होती है। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द पीपल अराउंड यू। अपने आसपास लोगों को ढूंढें जहां पर आपकी टीम है, जहां आप उनको टास्क डेलीगेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें ताकि वो भी आगे बढ़े। एक टास्क आपको दिया गया है, उस टास्क से बिलोंग करके आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट विच पर्सनालिटी कैन डू दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। इससे दो फायदे होंगे। यू विल बी हैविंग टू एडवांटेजेस ऑफ इट, विच इज वन ऑफ दैट इज दैट आपकी टीम बिल्ड होगी। नंबर वन, आपकी टीम बिल्ड होगी, आपकी टीम को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि वो किसी ना किसी स्टेप में आपको हेल्प भी करेंगे और आगे भी आएंगे। नंबर टू, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। आपको काम डेलीगेट करना आएगा, आपके काम की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे आप काम डेलीगेट करते जाते हैं, इस तरीके से आपके पास रिस्पॉन्सेज आना शुरू होते हैं। जब रिस्पॉन्सेज आपके पास आना शुरू होते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। सो इट इज नॉट ओनली दैट कि अपना काम आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसको बेनिफिशियल वे में देखिए। काम डिस्ट्रीब्यूट करने से सामने वाले को अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल रही हैं, आप मेंटली कितना रिलैक्स हो रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीखने का मौका किस कदर आपको मिल रहा है। लेट्स सपोज कि इसमें से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, या अब यू आर टायर्ड, अब बिल्कुल अपसेट हो चुके हैं, स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा, डिस्ट्रैक्शंस नहीं जा रहे, जो काम जैसे करना चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रहा, देन व्हाट? फिर क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं हो रहा है, इफ नथिंग इज पॉसिबल, कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, देन जस्ट ट्राई टू रिचार्ज योर बैटरी। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सबकी सब फेल हो गई, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप थक गए, आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए, तो जस्ट ट्राई टू रिचार्ज योर बैटरीज। अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आप क्या करेंगे? जस्ट ट्राई टू किक एवरीथिंग, सिट बैक एंड रिलैक्स। हर चीज छोड़ दें, आराम से बैठे, रिलैक्स करें, अपने लिए टाइम निकाल लें, सब कुछ छोड़ दें, अपने आप को रिचार्ज करें। रिचार्ज कैसे करें? देयर आर फ्यू टिप्स। आप मॉल्स जा सकते हैं आउटिंग के लिए, आप एक लेजर वॉक के लिए जा सकते हैं, मे बी एन इवनिंग वॉक, टेलीफोन कॉल टू अ फ्रेंड, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। सब कुछ छोड़ दें, म्यूजियम चले जाएं, अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाएं। ये कुछ टिप्स हैं आपके पास। लेकिन अदरवाइज भी अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, जस्ट गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। अपने आप को एक ब्रेक दीजिए और रिफ्रेश हो जाइए। रिफ्रेश हो जाइए और जीरो से स्टार्ट कीजिए। अगेन टेक्निक नंबर 1 से स्टार्ट करें, प्लान करें, प्रोजेक्ट स्प्लिट करें, टास्किंग डिस्ट्रीब्यूट करें, काम को डेलीगेट करें, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें। रिचार्ज करने के बाद अपने आप को रिफ्रेश करें, एक लॉन्ग स्लीप लें, अपना एक ट्रिप पे चले जाएं, एक लॉन्ग वॉक पे चले जाएं, आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो चीज ऑप्ट कर लें जो आपको रिफ्रेश करती है, जो आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं कि आप अब दोबारा से तैयार हैं काम करने। जब आप अपने आप को रिफ्रेश कर लेंगे, आपको अपने अंदर एक एनर्जी फील होगी। वंस यू फील द एनर्जी, अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी रेडी टू गेट एनी ऑफ द चैलेंज। जब आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। इफ आई आस्क यू कि आप इसमें से कोई 3 टेक्निक्स यूज करें, कोई सी भी 3 टेक्निक, डेफिनेटली आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मैं ये सारी टेक्निक्स अप्लाई नहीं कर सकती, बट मे बी इसमें से कोई एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी या एक मेरे लिए वर्केबल होगी, मे बी, बट आई एम आस्किंग यू 3। आप इनमें से कोई 3 टेक्निक्स मुझे ऐसी बताइए जो कि आपके लिए वर्केबल है, जिसपे कि आप काम कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू पिक 3 थिंग्स ओनली। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीथिंग एवरी टाइम। हमेशा हर चीज पॉसिबल नहीं होती। एंड अगेन पॉइंट नंबर 1 था कि अंडरस्टैंड करें कि हम सब परफेक्ट नहीं है। तो डेफिनेटली मैंने भी आपको 12 टेक्निक्स बताई हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। इन 12 टेक्निक्स में से जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द 3 टेक्निक्स विच आर हेल्पफुल फॉर यू। मैंने ये कहा था कि 5% प्रॉब्लम फिर भी रहता है। नाउ दिस इज द टाइम टू आंसर दैट क्वेश्चन। आफ्टर सेइंग नो, आफ्टर रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन, आफ्टर फाइंडिंग आउट माई प्रोडक्टिव टाइम, लकीली I और one, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं एक इंडिविजुअल की बात करी। Luckily an individual is successful to save some time
जिस वक्त मैंने कुछ चीजों को नो कहा, जिस वक्त मैंने कुछ डिस्ट्रैक्शंस रिमूव कर दिए, जिस वक्त मैंने अपना प्रोडक्टिव टाइम फाइंड आउट किया, जिस वक्त मैंने अपना ईच डे प्लान किया, जिस वक्त मैंने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज किया, जब चीजें स्टेप बाय स्टेप होना शुरू होंगी, देन डेफिनेटली वो काम जो मैं 2 घंटे का प्लान कर रही थी वो हाफ आवर में हो रहा है, 30 मिनट्स में हो रहा है, तो कुछ ना कुछ टाइम स्पेयर हो रहा है। 1 मिनट यहाँ से स्पेयर हुआ, 2 मिनट्स उस टास्क से स्पेयर हुए, 10 मिनट्स इस टास्क से स्पेयर हुए, 5 मिनट्स मेरी जर्नी से स्पेयर हुए। कहीं ना कहीं somehow and the other मैं सक्सेसफुल हो गई अपना 1 आवर या 30 मिनट्स या 40 मिनट्स स्पेयर करने में। वो वक्त मैं कहाँ यूटिलाइज करूंगी? आई विल बी यूटिलाइजिंग दैट टाइम ऑन माई ओन गुड। मैं अपनी बेहतरी के लिए यूज करूंगी, मैं अपनी फैमिली के लिए यूज करूंगी, मैं उन इमरजेंसीज के लिए यूज करूंगी जो कि किसी भी वजह से जनरेट हो जाती हैं, लाइक लोड शेडिंग हो गई, या गेस्ट आ गए, या बच्चे आसपास शोर कर रहे हैं, या कोई और प्रॉब्लम आ गया। ये मेरा वो सेव टाइम है जो कहीं ना कहीं मेरी प्रॉस्पेरिटी में यूज होगा, चाहे वो मेरी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी हो, मेरी ओन सेल्फ की प्रॉस्पेरिटी हो, या मेरी वर्किंग प्रॉस्पेरिटी, कहीं ना कहीं वो मुझे हैप्पी करेगा। सो जस्ट ट्राई टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। हम बात करते हैं कि हम टाइम मैनेज करते हैं, हम टाइम मैनेज करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली उसको मैनेज करने की कोशिश। सो दीज आर द 12 टेक्निक्स विच आई वांट टू प्रेजेंट टुडे। मैंने ये प्रेजेंट कर दी हैं। Okay, thank you so very much for your time. Thank you very much for your lovely responses.